Assalamu alaikum. So, your next lecture is about interview and interrogation. I told you in the first lecture of this module that interview and interrogation they are methods of criminal investigation और इनसे हम काफ़ी लोग जो हैं दे आर नॉट एबल टू उनको बेसिक आइडिया होता है कि इनमें फ़र्क क्या है लेकिन दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट टू अ ग्रेट डिटेल. So today's lecture will be number 1 focused on what interview is, number 2 what interrogation is. As interrogation is something relatively new to us, हम उसके methods पढ़ेंगे with the help of an example और उसके बाद I will summarize the basic differences between interview and interrogation. अब वो differences मैंने अपने time पे बहुत मुश्किल से गैदर किए थे क्योंकि नॉर्मली 2 या 3 differences आते हैं. So it's a very long list, so I hope it will be helpful for you people. Alright, first of all, interview and interrogation. They're both different techniques, different methods. Like in one thing, there is a place where they overlap, and that is they're both used to collect information from people. इंटरव्यू में भी और इंटेरोगेशन में भी दोनों में क्या होता है नंबर 1 पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड नंबर 2 उन लोगों से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं लेकिन उसके अलावा इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. अब जब आप इंटरव्यू सर्च करेंगे ना इफ़ यू सर्च फॉर एनीथिंग ऑनलाइन आपके साथ सबसे बड़ा इशू ये होगा कि इंटरव्यू इज़ अ वेरी रैंडम सा टॉपिक ना हर चीज़ में अप्लाई हो जाता है. तो आपने टू स्टिक टू द पॉइंट व्हेन यू सर्च फॉर इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू. ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू क्या है? इट इज़ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हम इंटरव्यू करते हैं. सो एन इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू इज़ एन इंटरव्यू कंडक्टेड टू इलिसिट एविडेंस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन. कोई विटनेस है, कोई विक्टिम है, कोई कंप्लेनेंट है और इवन अ सस्पेक्ट अनटिल वो आप उसको अरेस्ट कर सको. तो उनसे उन लोगों से इन 4 लोगों से जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन उसको हम कहते हैं इंटरव्यू, इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू. On the other hand, what is interrogation? Interrogation is the formal questioning of suspects. किसकी questioning होती है? Suspects की या persons और persons, mostly suspects की होती है to obtain incriminating information and or a confession. Interrogation may involve the diverse array of techniques ranging from developing a rapport to with the subject to torture. ठीक है, अब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये बेसिकली इंटरव्यू का एक हार्डर फॉर्म है, मोर स्ट्रिक्ट फॉर्म है. ठीक है, और इसमें हम ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? सस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, जबकि इसमें हर कोई आ सकता है. अब बेसिकली इंटरव्यू के बारे में व्हाट यू नीड टू नो. Interviewing victims, witnesses and suspects is central to the success of an investigation and the highest standards need to be upheld. Interviews that are conducted professionally and quality assured realize several benefits. अब जब इंटरव्यू हम करते हैं, why is interview such an important investigative technique? In particular, they can direct an investigation and gather material which in turn can lead to a prosecution or early release of an innocent person. अगर गिल्टी बंदे के अगेंस्ट जा रहा है आपका क्राइम तो मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन एक बंदे को गिल्टी प्रूव करने की है. सो इंटरव्यूज कैन बेसिकली हेल्प इन दैट. एंड सिमिलरली अगर एक इनोसेंट पर्सन जो कि कन्विक्टेड है उसको इनोसेंट प्रूव करना है तो इंटरव्यूज कैन हेल्प इन दैट एज वेल. सेकेंडली, सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन केस. जब आपका केस प्रोसिक्यूशन वाले फेज में जाता है, ट्रायल पे जाता है, तो a lot of you can save a lot of time, a lot of money and a lot of resources. क्यों? क्योंकि आपके पास valid information होती है from different people. Increase public confidence in the police service, particularly with witnesses and victims of crimes who come into direct contact with the police. अब जब एक police office देखो, a lot of people even here, even overseas, आप लोगों को पता ही है recent movements भी चली हैं. People have problem with the police. We fail to rely on them. तो इंटरव्यू का एक और फ़ायदा, एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि people are able to connect more with the police officers क्योंकि इंटरव्यू कंडक्ट ही police officer ने करना होता है. So when the police officer interacts with everyday people, so those people feel more secure and safe and they begin relying more on the police. Without the accounts of who played a central role in the crime,
or those who have witnessed an important aspect of the commission of the crime. अब जब तक आप इन लोगों से, इन witnesses से, या किसी को कुछ पता है, उनसे आप इंटरव्यू नहीं लोगे, तो तब तक आपके पास चाहे जितना मर्जी एविडेंस है, जो मर्जी आपके पास डेटा है, आपकी इंटरव्यू बेसिकली ये सारे जो डेटा, इन्वेस्टिगेशन, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, ये आपके इन्वेस्टिगेशन को नैरो करता है, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट क्या करता है, आपके इंटरव्यूज करते हैं। वो बताते हैं कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन को किस डायरेक्शन में लेके चलना है। ये सीसीटीवी इमेजेस, फिंगरप्रिंट्स, फोरेंसिक मटेरियल, ऑल्दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मे हैव लिटिल वैल्यू। अगर इंटरव्यूज नहीं सही कंडक्ट हुए तो इन एविडेंसेस का उस तरह से फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता आपने इन एविडेंसेस को किन चीज़ों में यूज़ करना है। अब लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेशन इज द मोस्ट सीरियस लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग अ सस्पेक्ट। इंटरव्यू को सीरियस कर दो ना तो वो इंटेरोगेशन है, सीरियस और उसको एक्सट्रीम कर दो। इट इज द प्रोसेस दैट अकर्स वंस रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीफ हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। जब आपके पास इतना एक एविडेंस हो जाए कि आप एक बंदे को सस्पेक्ट बना सको, उसको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाओ, तो तब आपका इंटेरोगेशन होता है। You need to have a proper reasoning for that. It is like an interview that is coercive and asks for a reply. Interview में you ask a question, they can say whatever you want. इसमें you force a reply out of them. Various techniques are used in order to trigger a response from the person being interrogated. Interview is very general, लेकिन person being interrogated, sorry. इंटरव्यू बहुत रैंडम होता है, इंटेरोगेशन इज एक्चुअली वेरी डायरेक्टेड। इसके बहुत टेक्निक्स हैं और वो टेक्निक्स हम आगे डिस्कस करते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेशन। नंबर 1 कस्टोडियल, नंबर 2 नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल क्या होता है कि आप उस बंदे को अरेस्ट करो विद अ वारंट एंड दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू लीव। व्हाई? बिकॉज दे आर इन पुलिस कस्टडी नाउ। नॉन कस्टोडियल इज बेसिकली आप किसी को ले आओ पुलिस ऑफिस और आप उसको इंटेरोगेट कर सकते हो, बट दैट पर्सन इज अलाउड टू लीव बिकॉज यू डू नॉट हैव द राइट टू अरेस्ट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। Aims to get documented evidence and proof that can be used in the court of law, primarily a confession. कोशिश यही होती है confession आए, confession ना सही तो ऐसे आपके पास रिकॉर्ड, क्योंकि जब interrogation होता है it's recorded, ऐसे आपके पास recorded information है जो आप कोर्ट में यूज कर सको। Now let me give you an example. Now this is Dave. We have Dave over here. Dave was caught. Dave's wife filed a complaint against him of domestic violence. This is Officer Steve. Officer Steve is conducting the interrogation. Now the purpose of this whole scenario is to explain to you किस तरह से डॉक्टर स्टीव, अब ये आया है कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, but he is refusing everything. How is Officer Steve going to use interrogation to get him to confess something? क्या क्या different techniques हैं वो मैं आपसे अब डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले direct confrontation. All the evidence is provided to the suspect with the police officer giving the suspect a chance to confess immediately. This is where you start off. आप उसके सामने फाइल रखते हो और आप कहते हो, तस्वीरें खोलते हो, ये निशान है तुम्हारी बीवी के ऊपर, ये है, this is her complaint, so you have committed the crime, मान जाओ, ठीक है। Officer Smith है, not Steve. Officer Smith tells Dave that the neighbors saw him hit his wife and his wife has bruises on her arms. नेबर की भी विटनेसेस भी आ गए, एविडेंस भी आ गया। ऑफिसर स्मिथ ऑल्सो शोज डेव पिक्चर्स ऑफ द हैंड प्रिंट्स ऑन हिज वाइफ्स फेस एंड टेल्स हिम दैट दे कैन मैच द हैंड प्रिंट फ्रॉम द पिक्चर टू डेव्स हैंड। अब वो हैंड प्रिंट भी मैच कर सकते हैं, तो बेसिकली डायरेक्ट सीधा सीधा उसके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं ये हुआ है, मान जाओ, वी हैव इनफ एविडेंस, तुम मान जाओ। ये बड़ा स्टार्टिंग ओपनिंग टेक्निक होता है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस। The law enforcement agent does not let the suspect talk. अब dominance क्या होता है? यहाँ तक तो अगर उसने नहीं ना admit किया, वो कहता है, वो चुप रहता है, he doesn't say anything. फिर what the officer does, वो dominate करता है उसके ऊपर। Since Dave is not speaking, Officer Smith is able to continue talking without being interrupted. Officer Smith बोलता रहता है and वो उससे क्या होता है, उसका एक प्रेशर बनता है। डेव इज नॉट, अब डेव कुछ बोलना भी चाह रहा है तो ऑफिसर डजंट लेट हिम टॉक, ऑफिसर का प्रेशर बन गया। सिंस अब अभी भी अगर डेव को इसके बाद नहीं कन्फेस करा, वो डिनाई किए जा रहा है, तो फिर व्हाट डज द ऑफिसर डू? ही यूजेस डिफ्लेक्शन और मिनिमाइजेशन। डिफ्लेक्शन भी कहते हैं इस टेक्निक को, मिनिमाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफिसर स्मिथ विल नाउ ट्राई टू गिव मॉरल जस्टिफिकेशन फॉर व्हाई डेव हिट हिज वाइफ।
अच्छा, अब ऑफिसर क्या करता है, ऑफिसर कहता है ठीक है ये जो दो मेथड्स थे दे डिडंट वर्क, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस मेथड। अब उन्होंने क्या करना है ऑफिसर ने, ही इज गोना से यार डेव आई अंडरस्टैंड बीवियां ऐसी होती हैं, वो ना बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ जाती हैं, वो बोले जाती हैं, एक काम इंसान है मेरा, मुझे भी अपनी बीवी पे बहुत गुस्सा आता है, तो एक काम इंसान हो तुम यार, हो जाता है, ठीक, ही सेज दिस। अब डेव जो है उसको लगता है कि दिस इज कॉल्ड मिनिमाइजेशन, ठीक है। ऑफिसर जस्टिफाइज डेव्स एक्शंस। अब क्या होता है, डेव स्टिल डिनाइज डेव्स, अब पहले तो उससे बुलवाना था, पहले तो वो बोल ही नहीं रहा था ना, अब ही स्टार्टेड डिनाइंग इट, ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो अब ऑफिसर क्या करता है, ही टर्न्स ऑब्जेक्शंस इनटू जस्टिफिकेशंस। अब डेव जब ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ऑफिसर उनको जस्टिफिकेशंस बना रहा है। डेव क्या कहता है, डेव सेज आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन, सो आई वुड नॉट हिट एनीवन, कहते मैं वायलेंट हूँ ही नहीं, मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को। Officer Smith takes the objections and justifies domestic violence. Officer Smith says, you're not a violent person, but when your wife got in your way, you had to hit her. Officer was not able to get Dave to answer either of his justification questions, so then he started showing empathy for Steve. अब वो क्या करता है डेव, अब वो क्या करता है, वो डेव के साथ empathy show करता है। Officer Smith expresses empathy for Dave. He tells Dave he understands what he is going through and that he gets irritated with his own wife. अब ये इसके और इससे पिछले दो मेथड ये थोड़े इंटरलिंक्ड है और ये चलता रहता है, ये कंटिन्यूस है, मैंने तो यहाँ 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया, ये चलता रहता है। वो कहता है हाँ आई गेट इरिटेटेड ऑफ माई ओन वाइफ एंड आई अंडरस्टैंड, ये वो एम्पैथी शो करता है। Dave once again remains silent and chooses not to speak with Officer Smith after he expressed empathy. अब भी नहीं माना, फिर ऑफिसर क्या करता है, posing the alternative questions. Officer Smith says, Dave, you will not confess because you are afraid you will lose your job and you will not be able to see your kids. कि अगर तुम पे डोमेस्टिक वायलेंस प्रूव हो गया फिर तुम जॉब से भी जाओगे, बच्चों से भी मिल सकोगे, तो इसलिए तुम नहीं मान रहे ना। Officer Smith then says, you hit your wife to be the man of the house and you did not want to lose control over her. वो अब वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को अलग अलग एंगल से, कभी जॉब से, कभी बच्चों से, कभी डोमिनेंस ला के, वो हर चीज़ से उसको उस डायरेक्शन से आता है। डेव बिकम्स रिस्पॉन्सिव टू द सिनेरियो अबाउट लूजिंग हिज जॉब एंड हिज चिल्ड्रन। फिर डेव जब जॉब, क्योंकि अब अगर आप स्ट्रेट उस चीज़ से जाओ ना तो द चांसेस ऑफ समवन agreeing is very less. But what Officer Smith does, वो अलग अलग डायरेक्शन से जाते हैं। अब क्या कोई ना कोई डायरेक्शन डेव को हिट कर जाएगा। Dave becomes responsive to the scenario about losing his job and his kids. He nods his head at Officer Smith, which is the first admission of guilt. अभी जो first admission of guilt है ना, यहाँ से फिर ऑफिसर ने उसको पकड़ना होता है और इसी से फिर उसे एक प्रॉपर फॉर्मल कन्फेशन लेनी होती है। अब ये तो ऑफिसर स्मिथ और डेव की सिचुएशन होगी। व्हाट अबाउट अदर टेक्निक्स। अब ये मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताया, उसके हिसाब से अब कुछ टेक्निक्स मैं आपको जनरली बता रही हूँ। अब ठीक है, आपको आइडिया हो गया कि इंटेरोगेशन इजंट दैट इजी, इसमें यू हैव टू प्ले विद द ह्यूमन साइकोलॉजी, और इंटेरोगेशन के लिए नॉर्मली दे हैव स्पेशलिस्ट्स। यहाँ आई एम नॉट श्योर बट ओवरसीज इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव स्पेशलिस्ट फॉर इंटेरोगेशन, जिसका काम ही होता है, और वो दे गो विद सच पोकर फेसेस, तो वो फिर किसी ना किसी तरह इन टेक्निक से कन्फेक्शन निकलवा लेते हैं। Another technique that can be used is maximization. This involves using the scare tactic. The seriousness of the offense can be exaggerated. अच्छा, maximization में क्या होता है, आप जो offense है ना उसको जिस तरह minimization में हम कम शो करते हैं, maximization में हम उसको बढ़ा देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा offense है और तुम तो ये और तुम्हारे against इतनी proof हैं और तुमने तो ऐसा जुर्म किया जो इतना बुरा है, कि उसको डरा के ना, दिस इज अ स्केयर टैक्टिक, डरा के उससे कन्फेशन लो। अनदर टैक्टिक इज नॉलेज ब्लफ। आप कह दो कि यार आई नो दिस हैपेंड, अगर आपको श्योर है ना, इवन इफ यू डोंट हैव एविडेंस, यू कैन क्लेम यू हैव एविडेंस फॉर दैट, यू कैन क्लेम यू नो समथिंग जो कि नहीं, यू डोंट नो, ताकि उसको लगे कि ओके अब तो मैं गया, इनके पास इनको तो ये भी पता और ये भी पता, अब तो मैं गया, चलो इससे अच्छा है मैं मान ही जाऊँ, ठीक है। एंड द लास्ट इज रेपर्ट बिल्डिंग। इट्स बेसिकली trying to get close to the person जिसको interrogate करो, उसको close हो, उसके साथ relate करो, उसके साथ bond बनाओ। Development of personal rapport with the suspect, often acting like a friend. Sometimes you act like a friend. This can include using sympathy, understanding, or in the case of a narcissist, flattery. Narcissist क्या होता है, उस तरह के criminals जो कहते हैं, जो अंदर ही अंदर समझते हैं कि I'm the best, no one is like me. तो ऐसे बंदे से कन्फेशन निकालने के लिए यू कैन यूज फ्लैटरी। आप उसकी तारीफें करो, आप उसको शो करो कि यार तुमने तो ये क्राइम करके यू मेड अस ऑल सो, मतलब
आपने तो हमें परेशान कर दिया है, मतलब उसको फ्लैटर करके ना उससे कन्फेशन लो। तो रैपर बिल्डिंग में क्या होता है, एक किस्म की आप दोस्ती करते हो अपने सस्पेक्ट के साथ. So these were the different techniques of interrogation, which highlights how technical interrogation actually is. And now we're moving on to interview versus interrogation. Instead of the very common 2-3 differences, there are a few more differences I have. सबसे पहले इंटरव्यू और इंटेरोगेशन. इंटरव्यू से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. इंटेरोगेशन में वी टेस्ट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, हमारे पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है हम उसको टेस्ट करते हैं कि इज इट ट्रू, कैन वी गेट अ कन्फेशन फॉर दिस. नो गिल्ट और अनसर्टन, कि आप जिसको इंटरव्यू कर रहे हो यू डोंट फाइंड हिम गिल्टी और यू आर नॉट श्योर दैट ही इज गिल्टी. इंटेरोगेशन में क्या होता है, गिल्ट इज सजेस्टेड और लाइकली, इट इज़ वेरी लाइकली कि दैट पर्सन इज गिल्टी. मॉडरेट और नो प्लानिंग, इंटरव्यू में आप प्लान करके नहीं जाते आपने किस तरह से मनूवर करना है, आप रैंडमली जाते हो और सवाल पूछते हैं. इंटेरोगेशन में क्या होता है, एक्सटेंसिव प्लान होता है कि ये पर्सन है, इसकी ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी ये पर्सनैलिटी है, इसको हमने इस हिसाब से इंटेरोगेट करना है. सेमी प्राइवेट एनवायरनमेंट, थोड़ा सा जहाँ पब्लिक है, आप किसी को भी इंटरव्यू कर रहे हो, आप उसको साइड पे लेके जाके उससे सवाल जवाब लेके नोट करते हो. इंटेरोगेशन में ये नहीं होता, इंटेरोगेशन में यू नीड अ completely private environment. इंटरव्यू में यू हैव अ वेरी कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद देम, इंटेरोगेशन में यू हैव अ हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद देम. इंटरव्यू में आप बड़े फ्रेंडली होते हो, कोऑपरेट करते हो. इंटेरोगेशन में यूर मीन एंड यूर रूड. इंटरव्यू में मोर टॉकिंग डन बाय द इंटरव्यूई. इंटरव्यू में क्या होता है कि जिससे आप सवाल पूछ रहे हो ना, आप सिर्फ उससे एक पॉइंट पूछते हो एंड यू लेट देम टॉक. आप उससे कहते हो कि बोल, मतलब यू जस्ट वेट, लेट देम टॉक एंड टॉक, और उसकी उस लंबी लंबी बातों में आप कहीं ना कहीं से कोई क्लू निकालते हो. तो इसमें ज़्यादा बात कौन करता है, आपका इंटरव्यूई जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो. इंटेरोगेशन में ज़्यादा कौन बात करता है, द इंटरव्यूअर जो इंटेरोगेट कर रहा है. इंटरव्यू में यू हैव अ स्कैटर शॉट अप्रोच, इंटेरोगेशन में यू हैव अ पिन डाउन अप्रोच. इंटरव्यू का मतलब है कि बस आपने उसको खुला छोड़ दिया एंड यू लेट ऑल द इंफॉर्मेशन कम. इंटेरोगेशन में यू डायरेक्टेड एंड द person basically follows according to that. So this marks the end of interview and interrogation. I hope you guys understand what the difference is, and we have 2 more lectures left in this module जिसमें हम मज़ीद ये चीज़ें cover करेंगे. So see you then. Allah Hafiz.